class, I mean yesterday, we have discussed Good morning, everyone. graph coloring problem. We have seen what is graph coloring. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. The concept of problem that we have seen. After that, we have taken an example. I mean to say type of graph. Yes, so in the last class we have discussed what is swapping, what is page fault, why this page fault situation occur. Okay, so today we will discuss about like how we can have Good morning, effective ma'am. access time good morning if there is page fault. Okay, today we will discuss that. So let's start. Let me share the PPT first. Okay. We have seen this example. So till now, is there any problems to it? Good morning. Good morning. For just making the continuity, I Good morning, one more Abhishek. example today. Then I will. Okay. So one more example is there. The graph Z is given. Yes, so performance of demand paging, we can evaluate the performance of demand paging by using this formula. Okay. On the topic that we have discussed here, one is a graph is given, and question may ask like how many colors are required, or you can say minimum colors. Colors mean minimum colors are required to paint the vertices of the graph. Well, the second question is graph giving and inclusion of that. One second, हम सब full screen कर लेते हैं. Yes. Is it visible to you, everyone? Full screen. Yes, ma'am. Okay, so effective access time is here P denotes the page fault rate. Fine, P is page fault rate. If I say that in every 1000 access there will be one page fault, so what will be the page fault rate here? Okay. Page fault rate where here will be 1 divided by 1000. Okay, number of page fault occurred divided by total number of access. आप कितनी बार access कर रहे हो और कितनी बार आपको पेज नहीं मिल रहा है. जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं स्टूडेंट को सर्च करने गई हूँ एक क्लासरूम में सेक्शन जी में सर्च करने गई हूँ, तो मैं 10 बार उस स्टूडेंट को सर्च करने गई, 10 बार से 2 बार बच्चा क्लास में नहीं मिला, तो इसमें क्या होगा पेज फॉल्ट रेट 2/10 कि आप कितनी बार तो गए 10 टाइम्स गए एंड 2 कितनी बार आपको नहीं मिला वो स्टूडेंट, दैट विल बी द page fault rate 2 divided by 10, that is 1/5. Similarly, if we want to evaluate the page fault rate, we can evaluate by using number of page fault occurred divided by total number of accesses. Fine. So this is the formula how we can find the effective access time if there is a page fault. 1 minus P, that means there is no page fault, into memory access plus P into page fault service time. Fine. Now these are the overheads which are included in the page fault service time. Fine. जैसे आपका पेज फॉल्ट हुआ तो पेज फॉल्ट को हैंडल करने में जो ओवरहेड है वो टाइम में इंक्लूड होगा. आपने फिर एक फ्री फ्रेम करने के लिए, आप जब भी आपका पेज फॉल्ट होगा आप क्या करोगे, आप एक फ्री फ्रेम फाइंड करोगे. ठीक है, आप फ्री फ्रेम फाइंड करोगे जिसके अंदर आप उस न्यू पेज को स्वैप इन करा सको. तो इसके लिए पहले आपको एक पेज स्वैप आउट कराना पड़ेगा. लेटेंसी टाइम इज टू फाइंड दैट पेज विद द मेमोरी. जो पेज आपको लेकर आना है उस पेज को पहले आप डिस्क में फाइंड करेंगे, दैट इज लेटेंसी टाइम. स्वैप पेज इन, उसके बाद आप पेज को लेकर आएंगे मेन मेमोरी में, देन रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन, दैट ओवरहेड विल बी रीस्टार्ट ओवरहेड. ठीक है, तो मुझे बस एक चीज टेली करनी थी आप लोगों से. यहाँ तक हम लोगों ने बेटा कर लिया था ना लास्ट क्लास में. Like steps followed to handle the page fault. We have done this, right? Yes, Sejal, Srijan, Ganesh, Abhishek. No one is there. Yes, ma'am. हाँ बेटा, हमने कर लिया है ना यहाँ तक, ये पेज फॉल्ट्स टेस्ट, यहाँ तक steps which are followed to service this page fault.
Yes. Suppose I am taking this node. Let check green color I have Okay. assigned. चलिए Generally I am taking the red. ठीक है, ये हमारा अब हम इसे न्यूमेरिकल कर लेते हैं. सपोज memory access time is given here 100 nanoseconds and page fault service time is given here 25 milliseconds. So I am using whiteboard here. So see, the approach you please follow like me. Yes. This is simply not give the wrong words. Yes. So your memory access time is 100 nanoseconds. Fine. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. Red cannot be used because these three nodes are adjacent to B. Is equals to 10. Is equals to. Now, let me for me. 10 is to power minus 9, 5 and page service time, page fault service time is equals to 25 milliseconds, which will be equals to, अगर हम 25 milliseconds को नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट होगा बेटा? ये देखिए ऐसे कन्वर्ट होगा. ये आपका है 25 into 10 is to power minus 3 because milliseconds is 10 is to power minus 3. अब आपको इसको कन्वर्ट करना है 10 is to power minus 9 में, तभी आप नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट कर पाओगे. सो व्हाट यू विल डू, आपको माइनस 9 में कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए? 10 is to power minus 6 चाहिए. So you will multiply it by 10 is to power minus 6 and divide by 10 is to power minus 6. सॉरी इसको प्लस कर सकते हैं, मतलब मैंने क्या किया 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया. ठीक है, तो देखो अब क्या होगा इसमें. 25 ये पावर जो है 10 इज पावर प्लस 6, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा 10 इज पावर माइनस 6. यस और नो? अब इन दोनों कंबाइन करके मेरा क्या बनेगा 10 इज टू पावर माइनस 9. नैनो सेकेंड से कन्वर्ट हो गया मेरा ये. अब इसके अलावा क्या बचा है 25 इंटू 10 इज पावर 6, तो कितना हो जाएगा ये मेरा 25 6 0 लिख दो यहाँ पर इंटू 10 इज पावर माइनस 9. सो ये मेरा नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो. कितना नैनो सेकेंड हुआ आपका? इट विल बी अराउंड इस 250. ये आपका उसमें आ जाएगा. This is nanoseconds. Fine. Now I need to find the effective access time. So what is the formula for effective access time? Is 1 minus p into memory access time, that is m, मैं यहाँ पर m use कर रही हूँ, plus p into page service time, उसके लिए मैं use कर रही हूँ pst. तो बेटा 1 minus p, पेज फॉल्ट रेट में यहाँ पर अज्यूम कर रही हूँ. आप एक क्वेश्चन में गिवन है that page fault is if one access out of 1000 causes a page fault. अगर 1000 एक्सेस में से 1 आपका जो एक्सेस है वो पेज फॉल्ट अकर कर रहा है, तो आपका पेज फॉल्ट रेट क्या होगा इस केस में? What will be the page fault rate? 1 by 100. 1 by 1000. 1000 एक्सेस है तो 1 by 1000. Yes, ma'am. P is equals to 1 by 1000. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 minus 1 by 1000 करूँ तो इट विल बी नेगोशिएबल, राइट? हम नेगोशिएट कर सकते हैं उसको. तो यहाँ पर मैं क्या लेती हूँ, इसको नेगोशिएट कर देती हूँ और मेमोरी एक्सेस टाइम लेती हूँ जो कि मेरा 100 प्लस. आप नेगोशिएट मत करना, आप पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करके आना उसको. ठीक है, ये P है आपका. ठीक है, दैट इज 1 by 1000. तो 1 by 1000 इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कितना है आपका? नैनो सेकेंड्स. इससे कैंसिल हो जाएगा. आपका कितना आएगा आंसर? 2510 नैनो सेकेंड्स. ठीक है, अब इसके बाद है आपका ये आपका आया. नाउ यू कैन सी अगर मैं इसको माइक्रो में कन्वर्ट करूं तो माइक्रो में कैसे कन्वर्ट होगा ये? 25 इंटू 10 इज टू पावर 3 लिख सकती हूँ मैं. 25.1
how many इंटू color are नैनो सेकेंड्स को क्या लिख सकती हूँ, -9 तो कितना हो जाएगा ये required 25 3 -9 -6 हो जाएगा 25 माइक्रो सेकेंड्स हो जाएगा। माइक्रो में कितना होता है, 10⁻⁶ ही होता है, 25 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, ये मेरा होगा इफेक्टिव एक्सेस टाइम। नाउ अब बात करते हैं कि अगर मेरा कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होता, ठीक है, यहाँ इस केस में मेरा पेज फॉल्ट हो रहा है, if one access out of 1000 is causing page fault here, then effective access time will be 25 microsecond. But if there is no page fault, अगर कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा तो हमारा p की वैल्यू क्या होगी इस केस में? What will be the value of p? one more graph. This is also complete. 0 0। तो अगर 0 में यहाँ पे वैल्यू को प्लेस करूंगी तो 1 - 0 is 1, so 1 into m plus 0 into page service time will be 0, so आपका आंसर क्या होगा 1 into m, m क्या है 100, so 1 into 100 is 100। तो जब पेज फॉल्ट नहीं है तो आप कितना आंसर 100 नैनो सेकेंड्स में आ रहा है, तो अगर इसको माइक्रो सेकेंड्स में कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा आपका 0.1 माइक्रो सेकेंड्स, क्योंकि मेरा ये भी माइक्रो सेकेंड में है ना। तो कंपैरिजन करने से पहले व्हाट आई विल हैव टू मेक द यूनिट सेम, ठीक है। नाउ यू कैन सी व्हेन द पेज फॉल्ट इज occurring, the effective access time is 25 microsecond, and when there is no page fault, the effective access time is 0.1 microsecond. So can you see there is 250, there is a slowdown by the factor of 250, because you can say 0.1 microsecond and 225 अगर डिवाइड करोगे दोनों को तो क्या आएगा 25 माइक्रो सेकेंड। इसको इंटू 10 कर सकते हैं नीचे करके पॉइंट हटाने के लिए। तो कितना फैक्टर हमारा हो रहा है 250 फैक्टर से मेरा क्या हो गया इफेक्टिव एक्सेस टाइम स्लो डाउन हो गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? This is a comparison like performance of demand paging. Yes, is it clear? मैम ये जो लास्ट में आपने किया ये फिर से आप बताइए। बेटा देखो, जब मेरा कोई पेज फॉल्ट नहीं था तो मेरा इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या आया 0.1 माइक्रोसेकंड, और जब मेरा पेज फॉल्ट था तो कितना था 25 माइक्रोसेकंड। मैंने इनको डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया है कि मैं देखा किस फैक्टर से मेरा कितने फैक्टर से मेरा जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है वो इंक्रीज हो गया है। देखो मैंने 0.1 डिवाइड बाय 25 दोनों की सेम यूनिट में है, ठीक है। अब पॉइंट को हटा के मैंने इंटू 10 कर दिया बेस में, तो कितना 250 माइक्रो सेकेंड्स आ गया, और ऊपर कितना रहेगा 1 माइक्रो सेकेंड। तो देखो 250 फैक्टर से आपका जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है वो स्लो डाउन हुआ है, ठीक है। ओके ओके, पीपीटी विजिबल आपको भी नहीं होगी, चलिए सब ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करेंगे जिससे कि वी विल सेलेक्ट द विक्टिम दैट व्हिच पेज विल बी रिप्लेस्ड टू ब्रिंग द डिजायर्ड पेज, ठीक है। यही है इसमें, अगर आपको कोई भी फ्रेम अवेलेबल नहीं होगा जब पेज फॉल्ट हुआ है लेकिन आपको न्यू पेज लेकर आना है अपने फ्रेम में, बट देयर इज नो फ्री फ्रेम अवेलेबल, देन व्हाट यू विल डू, यू विल स्वैप आउट वन पेज टू मेक अ फ्रेम फ्री, ठीक है। And replace a page in memory to load a desired page. Page fault service routine is modified to include page replacement. अगर आपका पेज फॉल्ट हो रहा है मतलब कि आपका पेज मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपका पेज रिप्लेसमेंट हो सकता है इफ देयर इज नो फ्री फ्रेम, और अगर फ्री फ्रेम अवेलेबल होगा आपका मेन मेमोरी में तो हमें पेज रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। ओके, रिप्लेसमेंट कैन बी ऑफ सेवरल पेजेस। आपका एक पेज को लाने के लिए मुझे सेवरल पेज स्वैप आउट करने पड़ सकते हैं, depends on the size of the page which we have to bring in to the memory, fine।
we will choose the victim. अब ये बात ध्यान सुनो, इसमें we will check the dirty bit of the page. Fine. Suppose there is a page in the main memory. You all must know that the every data which is present in main memory, there is a copy of that data into the disk also. Fine. So when I will swap out that page, suppose I have chosen the victim. Okay, now I want to swap out that page from the main memory. So I will check its dirty bit. Dirty bit is set when that page is modified. अगर आपको पेज मॉडिफाई हुआ है तो उसकी जो dirty bit है वो सेट हो जाएगी. ठीक है, तो अगर उसमें कुछ मॉडिफाई हुआ है तो मैं उसको वापस से डिस्क में राइट करूंगी. भाई जो चेंजेस हुए हैं उसको पहले मुझे डिस्क में सेव करना पड़ेगा ना, जिससे कि वो ग्लोबल चेंज हमारा हो जाए. ठीक है, अगर उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब उसकी डर्टी बिट सेट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, जो पेज मुझे लेकर आना है न्यू, उसको मैं ओवरराइट करा दूंगी. ठीक है, क्लियर आया, समझ में आई ये बात? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मेरा एक स्टूडेंट है, वो अपना कुछ काम कर रही है. मैंने बोला अगर आपका कुछ मॉडिफाई किया है अपने आंसर में तो आप मेरे पास लेकर आओ, तो आई विल सेव दैट मॉडिफिकेशन. अगर नहीं किया है तो क्या है कि जब कोई भी बच्चा आके उसको रिप्लेस कर सकता है. ठीक है, और अगर उसने उसकी डर्टी बिट सेट है, मतलब उसने कुछ चेंजेस किए हैं अपने आंसर में, तो पहले उसको मेरे पास आके सेव कराना पड़ेगा, उसी के बाद उसको कोई रिप्लेस कर सकता है. ठीक है, so that can be identified by the dirty bit, whether the page is modified or not. And if victim is a dirty page, then it will be swapped out. Otherwise, the page to be brought in is that overdone. One second, brought in is overdone over it. Choosing a one page victim, that victim can be of same page. आप इसमें local replacement और global replacement का मतलब ये है, suppose I have two processes P1 and P2. P1 को एक P1 के पास already one or two page है. Now it requires page number 3. Okay, and it does not have any free frame to bring that page. So first of all, it will have to swap out one page. अगर वो अपने ही 1 या 2 में से किसी को स्वैप आउट करता है तो हम बोलेंगे उसको लोकल रिप्लेसमेंट. लेकिन अगर वो प्रोसेस P2 के किसी पेज को स्वैप आउट कर रहा है अपने पेज को स्वैप इन करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबल रिप्लेसमेंट. क्लियर है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकल रिप्लेसमेंट एंड ग्लोबल रिप्लेसमेंट? चलिए, next is page fault service routine is now modified to include page fault replacement. First of all, we will find the location of desired page on the disk. We will find whether where that page is present on the disk. Then we will find the free frame where we will load that page. And if there is a free frame, we can use it. We can simply load that page into the free frame. But if there is no free frame, then we will have to use page replacement algorithm to replace one page from the disk, from the main memory. And that frame will be victim frame, and write the victim page on the disk, change the page and frame tables accordingly. ठीक है, मैं आपको इसको इस सारे स्टेप्स में आपको डायग्राम से बताती हूँ, आप समझ में आएगा ठीक से. डायग्राम देखो ध्यान से. मेरे पास दो यूजर है, यूजर 1 यूजर 2. से उसको थर्ड पेज का डेटा चाहिए. देखिए यहाँ पर थर्ड पेज के डेटा के आगे कोई फ्रेम नंबर नहीं है और उसकी बिट भी इनवैलिड है, मतलब कि वो पेज मेरा मेन मेमोरी प्रेजेंट नहीं है. नाउ यू कैन सी m is not present anywhere in the main memory. Fine, m is not present anywhere in the main memory. Okay, next this page number 1 is also not present in main memory as there is no frame number for this page, and its bit is also set to invalid. Fine, you can see B and M is present here on the disk. Fine. अब देखो अब हमारे पास मेरा फिजिकल जो मेन मेमोरी है वो भी फुल है, but there is no free frame. अगर मुझे पेज नंबर 3 को लेकर आना है जिसमें डेटा M है, उसको अगर हमें मेन मेमोरी में लेकर आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फ्री फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा. मतलब मुझे एक पेज को पहले स्वैप आउट करना पड़ेगा, तभी मैं उसको स्वैप इन कर सकती हूँ. ठीक है, दिस इज अ नीड फॉर पेज रिप्लेसमेंट. अब देखिए व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच विल बी फॉलोड in page replacement. First of all, I will select the victim, okay, which page will be swapped out.
So I will swap out that page onto the disk. Then I will modify the page table. Why? Because the page which is swapped out, its VI bit will be set to invalid because now that page is not present in the main memory. Then I will swap in the desired page on that in that free frame, and I will reset the page table for new page because now I will reset the VI bit for this page to valid. Okay, these are steps which will be followed in the page replacement algorithm. Now, it prevent over allocation of memory by modifying page fault service routine to include page replacement. It will use modified dirty bit to reduce overhead of transfers. Only modified pages are written on the disk. मतलब क्या कह रहा है कि अगर हमें पेज को स्वैप आउट कराना है तो हम सिर्फ उन्हीं पेज को स्वैप आउट कराएंगे, उन्हीं पेज को राइट कराएंगे डिस्क पे जो कि मॉडिफाइड है, जिनकी डर्टी बिट सेट है. अगर हमें डर्टी बिट सेट नहीं है तो वी नीड नॉट टू राइट दोज पेजेस ऑन द डिस्क. फाइन, हम उनको सिंपली ओवरराइट करा देंगे अपने डिजायर्ड पेज से. ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज डर्टी बिट एंड व्हाई वी आर यूजिंग इट हियर. ठीक है, डर्टी बिट क्या है और हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको, क्या इसका एडवांटेज है. Fine. Now page replacement complete separation between physical memory and logical memory. Fine. Now this is a page replacement algorithm we will discuss. First page replacement algorithm is first in first out. Okay, so first of all we will choose the victim page. Then we want that the पेज फॉल्ट रेट शुड बी द लोएस्ट. ओके, अगर हम कंपैरिजन करें मल्टीपल एल्गोरिथम्स में तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं उनके परफॉर्मेंस का कि जो एल्गोरिथम सबसे कम पेज फॉल्ट रेट, जो सबसे कम पेज फॉल्ट्स जनरेट करेगी वो एल्गोरिथम मेरा ऑप्टिमल एल्गोरिथम होगा. फाइन. So we will evaluate algorithm by running it on a particular string of the memory references and computing the number of page faults on that string. हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन स्ट्रिंग जो होगी हमारी मेमोरी रेफरेंसेस की स्ट्रिंग होगी उस पर हम मल्टीपल एल्गोरिथम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं. देन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अकर्ड in each algorithm. Then the algorithm which has a minimum page faults will be the optimal one. Fine, suppose this is a question given here. Now let's implement first in first out algorithm. First in first out algorithm says that the page which has arrived first will be swapped out first. जो सबसे पहले आया होगा सबसे पहले उसी को भेजेंगे हम. यहाँ तक सबको क्लियर है तो बताइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे. Yes, is it clear to everyone? मैम ये वाला एग्जांपल एक बार फिर से बताइए प्लीज. बेटा ये वाला एग्जाम्पल बताया भी, अभी तो मतलब बताऊंगी एग्जाम्पल. इससे पहले वाला क्लियर है सबको? इससे पहले वाली चीजें क्लियर है? हाँ जी बेटा जी. आस्था, अभिलाष, अभिषेक, सृजन, सेजल, गणेश. चलिए, so I am assuming it is clear to everyone. Okay. Now this is a reference string given here. Now I need to implement first in first out page replacement algorithm. So let's start it. Okay, number of frames located to this corresponding process is 4. आपके पास 4 frames है. अगर मेरे पास 4 frames है, then how many pages we can load into the main memory at a time? हमारे कितने pages हो सकते हैं main memory में? Yes, anyone? Anyone who can answer this question? Yes, beta. अगर मेरे पास 4 फ्रेम तो बेटा 4 तो पेजेस हो सकते हैं मेरे मेन मेमोरी में. बताइए.
Okay, students. So I have 4 frames. This is the statistics diagram only for. ओके नाउ सबसे पहले मेरा किसकी रिक्वेस्ट आई है, पेज नंबर 1 की। मैं पेज नंबर 1 को ले आऊंगी और देखो पेज नंबर 1 अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, आपका पेज फॉल्ट होगा। मैंने इसको टिक कर दिया है, मतलब मार्क कर दिया है, ठीक है। नाउ सेकेंड रिक्वेस्ट इज फॉर पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी. अगेन पेज फॉल्ट विल अकर हेयर ऑल्सो, ठीक है। I will bring that page into the main memory because I have free frame. Next, page number 3. Page number 3 is also not present. Again, page fault occurred here, and but now I have free frame. I can easily bring that page into the main memory. Page number 4, it is also not present. So again, I will bring that page into the main memory. Page number 5. This is also not present, but now as you can see, I do not have any free frame with me. So now I will have to use the page replacement algorithm. Fine. यहाँ पे भी आपका पेज फॉल्ट हुआ था। अब देखो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम क्या कहता है, जो पेज सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले स्वैप आउट करना पड़ेगा। तो बेटा 1 2 3 4 इनमें से सबसे पहले कौन सा पेज आया था? Page 1. So I will swap out this page and I will bring this page in the place of this page. So here is page number 5. पेज फॉल्ट इस केस में भी हुआ है, ठीक है। जिस पेज की रिक्वेस्ट है अगर वो पेज आपका मेन मेमोरी में नहीं है, मतलब आपका पेज फॉल्ट हुआ है, ठीक है। 3 is already present, so there will be no page fault. 4 is already present, there will be no page fault. 1 is not present here. Again, I will have to, and you can see there is no free frame. So again, I will have to use the page replacement algorithm. Now, which page has arrived first? 2. 2. So I will swap out this page number 2 and I will swap in page number 1. In this case, page fault occurred. So here is page 1. Fine. 6 is also not present. To bring this page, I will have to swap out one page. So I will swap page number 3 because this is the page which has arrived first. So I'll bring page number 6 here. In this case also page fault occurred. Page number 7. 7 is also not present. और वो कहाँ पर आएगा आपका? 4 की जगह पर आएगा, 4 सबसे पहले आएगा। 7 आया, इस केस में होगा पेज फॉल्ट हुआ। 8 भी प्रेजेंट नहीं है। अब क्या स्वैप आउट होगा आपका? 5 स्वैप आउट होगा, 8 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 7 is already present here, no page fault will occur. 8 is also present here, no page fault will occur. 9 is not present, so I will have to bring this page into the main memory. So which one will be swapped out? Page number 1, ठीक है। Now 5 is also not present. Again, I will have to swap out one page. I will swap page number 6 because this is the page which has arrived first. So again, page fault occurred for 5. 4 is also not present. Now I will swap out page number 7. Now 5 is already present. 4 is also present. Again 4 is present. Now you can calculate the number of page faults. बेटा कितने page fault हुए? 1 2 एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So total number of page faults are 12 by using page first in first out algorithm. क्लियर है ये सबको? इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। आपके क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि आपसे पूछा जाए that how many page faults will occur in for this reference string using that algorithm. आपसे कोई भी algorithm पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा कि इस algorithm को follow करते हुए कितने page fault आपके होंगे। Yes, someone was saying something. Yes, beta. Having any doubt? समझ में आया हम कैसे विक्टिम सेलेक्ट कर रहे हैं? हाउ वी आर सिलेक्टिंग द विक्टिम? यस मैम। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम बाकी एल्गोरिथम्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यू रिवाइज टिल हियर
and if you have any doubt, you can ask it in the next class. Okay, and you have lab also today at 11, right? Yes, ma'am. Okay, so be ready with your presentations. Those who are left. Shelly class, thank you. Now you may leave. एक्सक्यूज मैम, मैम प्लीज मैम 10 मिनट्स के लिए 10-20 मिनट्स के लिए और ले लीजिए। एक्चुअली क्या है मैम, मेरी नेटवर्क इशू बहुत आ रही थी मैम, मैंने लेट ज्वाइन करा है। 10-20 मिनट्स के लिए और ले लो। यस मैम, मैम एक्चुअली क्या है मैम, मेरी नेट इशू बहुत आ रही थी। एक्चुअली नेट मेरा चल नहीं रहा और मैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके करा हुआ मैम, प्लीज। बेटा सार्थक, आपकी तो अटेंडेंस ठीक है मेरे हिसाब से, तो क्यों तो टेंशन ले रहे हो? मैम फिर भी मैम प्लीज, मैम एब्सेंट लग जाती है ना तो पेरेंट्स मतलब चिल्लाते हैं, मतलब एब्सेंट क्यों लग गई। अगर ऐसा हो तो आप बोलते ना, मेरे से बात कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, एक उसकी बात है। आई नो आप रहते हो रेगुलर क्लास में, जितना मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आपकी शॉर्ट आई, कितनी परसेंट है आपकी अटेंडेंस सार्थक? लैब में शॉर्ट है मैम, 2-3 लैब में शॉर्ट है। तो लैब का देखेंगे ना, लैब का तो लैब होगी अभी, तो कोई हो जाएगी नॉर्मल। थ्योरी में कितना है? मैम इसमें आई थिंक सही है। बस तो फिर क्या दिक्कत है? ओके मैम। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके मैम। चलो ओके क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। टेंशन मत लो अटेंडेंस की, यस मैम। क्लासेस चल रही हैं, आप सब अटेंड कर रहे हो तो लगेगी अटेंडेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्लास का इतना इशू नहीं है। थैंक यू मैम।